ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں کچھ احادیث دوا کے استعمال پر اور اس کے ثبوت پر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے سوالات رہتے ہیں کہ دوا کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوائی استعمال کی ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے ان تمام چیزوں کو ان احادیث مبارکہ سے جانتے ہیں۔ آج میرے سامنے کتاب مشکات شریف یعنی مشکات المصابیح موجود ہے، جو بہت ہی جامع کتاب ہے، اور مشکات شریف کی جن احادیث کو اس وقت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، الحمدللہ وہ تمام احادیث بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری۔ یہ سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہے بخاری شریف کی۔ یہ میرے سامنے موجود ہے مشکات شریف، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مشکات شریف کتاب الطب والرقا۔ تو یہ رقا کے معنی آتا ہے جھاڑ پھونک، اور کیا نام ہے، طب کے معنی آتا ہے علاج و معالجہ، ڈاکٹری، یہ کہہ سکتے ہیں۔ طب سے ہی طبیب بنا ہے، جس کے معنی آتا ہے ڈاکٹر کی۔ تو طب یعنی علاج، ڈاکٹری، دوائی استعمال کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام جو ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، انہوں نے دوائی استعمال کی ہے نہیں ہے، کی ہے یا نہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو دوائی استعمال کرنے کو کہا ہے یا نہیں۔ آپ خود استعمال کریں یا پھر کسی کو کہیں، یہ تمام چیزیں حجت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ بنیادی بات یہ ہے، دیکھیے، کسی حدیث میں اگر صراحتاً یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، وہ بھی حجت ہے، یا پھر آپ نے کسی کو کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی حدیث ہے، یا پھر آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی کام کیا جا رہا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، وہ بھی حجت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ دلیل دیں کہ بذات خود آپ علیہ السلام نے اس کام کو کیا ہے نہیں، اگر کیا ہے تو ہم مانیں گے، اور نہیں کیا تو نہیں مانیں گے، یا بذات خود آپ نے یہ کام نہیں کیے، ہم نہیں ماننے والے ہیں، نہیں، بلکہ حدیث کی تعریف ہی اصل میں یہ ہے۔ حدیث اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس اس کو کیا ہے، یا پھر آپ نے تو نہیں کیا لیکن آپ نے حضرات صحابہ کرام کو کرنے کے لیے کہا، حضرات صحابہ کرام نے اس کو کیا، یا پھر حضرات صحابہ کرام کو کرنے کے لیے تو نہیں کہا لیکن حضرات صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور آپ اس پر نکیر نہ فرمائے، یعنی روک ٹوک نہ دیں، تو وہ کام بھی اور وہ عمل بھی حجت ہوتا ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی حدیث ہے۔ تو آئیے سرے جانتے ہیں بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیماریاں دنیا میں اتاری ہیں یا اتارتے ہیں، الا انزل له شفاء، اس بیماری کے لیے شفا ضرور رکھتے ہیں۔ یعنی جن بیماریوں کا برپا ہوتا ہے، جو بیماریاں پھیلتی ہیں دنیا میں، چاہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ضرور شفا رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے صراحتاً کی موجود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دوائی استعمال کرنی ہے نہیں کرنی ہے، لیکن دوسری حدیث آئیے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ وعنہ قال، یعنی یہ حدیث حضرت جابر سے روایت ہے۔ وعن جابر قال، حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بن کعب طبیبا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بذات خود
उबई इब्न काब के पास तबीबन, एक डॉक्टर को भेजा। ये सारे लोग जानते हैं मुआलिज को यानी इलाज करने वाले को, दवाई देने वाले को अरबी में तबीब कहा जाता है। तिब के माना डॉक्टरी और तबीब के माना डॉक्टर, ये हर एक जानता है। और मतलब के माना आता है क्लिनिक अरबी में, यानी जहाँ दवाई मिलती है उसको कहते हैं मतलब, ये जहाँ इलाज होता है उसको कहते हैं। बहरहाल तो क्या नाम है, इस हदीस का मतलब ये निकला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदाती खुद भेज रहे हैं इला उबई इब्न काब, उबई इब्न काब के पास क्या भेज रहे हैं भाई, उसको पढ़ते हैं तबीबन, एक डॉक्टर को आपने भेजा। आगे लिखते हैं कि फ़क़ता मिन्हु अरक़, तो उन्होंने उनकी एक नस काट दी। जाहिर सी बात, किसी नस में कुछ तकलीफ थी तो नस को छेड़ा, काटा, जिसको हम और आप इस जमाने में कह सकते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में चूंकि काट छाट होती है तो वही उसी को बयान कर रहे हैं। फ़क़ता मिन्हु अरक़न, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं, फिर उस डॉक्टर ने हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस काट दी। सुम्मा कव्वाहु अलैहि, कव्वाहु अलैहि के माने है फिर उस नस पर दाग दिया। दागने का क्या मतलब उसको समझे। पहले जमाने में होता था कि जैसे कोई सिक्का है या कुछ भी लोहे की चीज है, उसको गर्म किए और नस को काटा, फाड़ा, चीरा, उसको कुछ दवाई रखनी हुई रख दी, फिर उसके बाद फिर क्या किए, उसको इस तरह करके सेक दिए। तो उससे क्या होता था, वो जख्म जो होता था वो सूख जाता था, ये कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के जमाने में करना ही है, इसलिए कि उस जमाने में किस तरह किया जाता था वो भी ना ब्याई नहीं हदीस में मौजूद नहीं है। लेकिन हदीस में इस बात का इशारा मिलता है कि हाँ उस जमाने में इस तरह किया जाता था। कहीं कुछ फाड़ना है, चीरना है, जख्म हो गया तो उसको सिक्का वगैरह लेकर के दाग देते थे। तो वो जमाने की बात है, उस वक्त की आबो हवा की बात है और हजरत सहाबे कराम की बात है। प्लस मुख्तलिफ जमाने में मुख्तलिफ दवाइयाँ आई, दवाइयाँ हर जमाने बदलती रहती है। ये आज से तकरीबन 1450 साल पहले की बात है। आज के मुहक्किकीन डॉक्टर ये कहते हैं, साइंस ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए और हो सकता है कि आप शिफायाब भी हो जाए। बहरहाल असल मुद्दा इस वक्त ये है कि इस हदीस से हमको ये समझना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्न काब के पास डॉक्टर को भेजते हैं और वो उनकी नस को काटते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, जिससे ये बात मालूम हो रही है कि उनका ऑपरेशन हुआ। सुम्मा कव्वाहु अलैहि, फिर उसकी नस को दाग दिया गया। इस हदीस से बिल्कुल साफ मालूम हुआ कि हाँ इलाज कराना ये हजरात सहाबे कराम की सुन्नत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। इसलिए कि आप बताते खुद डॉक्टर भेज रहे हैं, आपका ये अमल हुज्जत है। उसके बाद वअन अबी हुरैरह अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फिल हब्बति सौदा शिफाउन मिन कुल्लि दाइन इल्ला अस्साम क़ाल इब्न शिहाब अस्सामु अल-मौत वल हब्बतु सौदाउ अश-शौनीज़ मुत्तफ़क़ुन अलैहि। आगे ये हदीस मिशकात में मौजूद है, किताब तिब्बी व रुक़ा। हदीस की रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं कि आगे साहिब किताब जो मिशकात मसावी के मुसन्निफ है वो लिखने के बाद इस हदीस को कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुत्तफ़क़ुन अलैहि का मतलब होता है इस हदीस को बुखारी ने भी नकल किया है और मुस्लिम ने भी नकल किया है। गोया कि ये हदीस दोनों किताबों में मौजूद है, बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। जो हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद होती है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद होती है, उस हदीस को नकल करने के बाद साहिब किताब मुत्तफ़क़ुन अलैहि का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके बाद सरे 10 हदीस का तर्जुमा जानते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अन्नहु समिअ रसूलल्लाह, कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना फिल हब्बति सौदा शिफाउन, काला दाना में शिफा है, काला दाना में शिफा है। फिल हब्बति सौदा, काले दाने में शिफा है। अब क्या काला दाना है, उससे क्या, इससे क्या मुराद है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। इल्ला साम, सिवाय मौत के, कोई भी बीमारी हो अगर वो काला दाना इस्तेमाल किया जाएगा तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। ये आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। इल्ला साम, सिवाय मौत के, मौत के लिए मौत से कोई रुकने वाला नहीं है और कोई दवाई रोकने वाली नहीं है। क़ाल इब्न शिहाब, इब्न शिहाब जो है ये अस्साम की तफसीर करते हुए कहते हैं
अस्साम से मुराद अल-मौत, साम से मुराद क्या है? मौत है। बहरहाल वल-हब्बतु सौदा अश-शौनीज़, और काला दाना जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काले दाने इस्तेमाल करोगे तो जितनी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो काले दाने से मुराद क्या है? नीचे बैन सुतूर में लिखा है कलौंजी, उर्दू में जिसको कलौंजी कहते हैं, काला जीरा जिसको कहते हैं, उसके इस्तेमाल से बीमारियां क्या होंगी? खत्म होंगी। देखिए, तो मालूम ये बात हो कि काला जीरा भी एक तरह की दवाई है और उसको इस्तेमाल करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तो इस हदीस शरीफ से भी ये वाज़ेह हो गया कि वाक़ईतन दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। दवाई का इस्तेमाल करना ये तिब्बे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हज़रात सहाबे कराम की सुन्नत है। उस ज़माने में जैसा मुवाफिक हुआ हज़रात सहाबे कराम ने दवाई इस्तेमाल की है। अगर मैं इस पर चाहूँ तो लाखों हदीसें पेश कर सकता हूँ। इतनी अहादीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बेशुमार अहादीस इरशाद फरमाई है दवाई के सिलसिले में, इलाज मुआलजे के सिलसिले में, लेकिन हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से मैं उन तमाम अहादीस का इहाता नहीं कर सकता। बहरहाल ये 2-3 अहादीस आपके सामने पेश की गई जो बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की है, जिसको साहिब मिशकातुल मसाबीह ने नकल फरमाई है। उन तमाम अहादीस से मालूम हुआ कि वाक़ईतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके बाद एक बात और बतलाऊं, कुरान करीम में भी एक आयत है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है। शहद को अगर कोई दवा के तौर पर इस्तेमाल करे तो वो भी अच्छी चीज़ है, और अगर कोई ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करे वो भी बेहतर है। तो उस समय भी मालूम हुआ कि हाँ, दुनिया की ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बतौर दवा इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि जो आपके सवालात थे, जो आपके मसाइल थे, वो सब के सब हल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक तआला आप तमाम को सही समझ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।